Now we are solving the question exam of Mandi Sachin. Let's start. That exam was conducted in 2023. Now let's start the maths portion. First, if the perimeter of circle, if the perimeter of the circle and square are equal, then the ratio of their areas of perimeter of circle क्या होता है? Perimeter of circle is equal to perimeter of square. Perimeter of circle is 2 pi r is equal to perimeter of square 4a. Now 2 into 22 upon pi की वैल्यू 22 upon 7 and r is equal to 4a. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 into 2 है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 11 बचेगा. Then r upon a is equal to 11, 7 upon 11. Then their areas. Now we solve then the ratio of their area. अब हमें क्या चाहिए, इनके एरिया का रेशियो. फॉर एग्जांपल सर्कल के एरिया क्या होता है, इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया. हमें पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एंड स्क्वायर का ए स्क्वायर. नाउ पाई एज इट इज रहने देते हैं 22/7, आर का वैल्यू 7 स्क्वायर, देन ए 11 into 11, 1 7 1 7 cancel, 1 11 2 cancel. What's the answer is 14/11. What you have, 14/11. That's the first answer, 14 units. Now हमें मिल गया आंसर है. Now move to second question. Now move to second question. If to the power x, okay, ये तो easy है. To the power x plus 6, हमें पता है 8 है to the power 3 x plus 1. Now compare to x plus 6 and 3x plus 1. Now 3x में एक x माइनस कर देंगे, then 2x and 6x में 1 माइनस करेंगे, then 5. सॉरी 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 6 में 3 माइनस होगा, then again 3, then x is equal to 3/2. That's the correct answer, and here is the correct answer. Now move to next question. Third question is, if the amount of 3/8 times the sum after 3 years at compounded annually, then the rate of interest per annum. यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों पर चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुना हो जाती है तो ब्याज के वार्षिक कितना होगा. ओके, हमें पता है क्या,
amount of Ci. What's the formula? A is equal to P plus 1 plus R upon 100 the power T. ये क्या है? 3/3 8 गुना हो जाता है किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का. ओके. P 1 प्लस R का वैल्यू नहीं गिवन है. 100 टाइम्स 3 years. अगर इसको करें 8 इंटू 3 54 एंड 27 अपॉन 8. P ऑलरेडी कैंसिल. अब 1 प्लस R अपॉन 100. अगर हम इस क्यूब को लेफ्ट साइड मूव करें तो ये अंडर रूट में हो जाएगा. देन 1 प्लस R अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या होगा जब ये क्यूब यहाँ पे आएगा. देन इस 3 को इस तरफ मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा और रूट यहाँ पे आ जाएगा. देन ये हो जाएगा 3/2. अगेन सॉल्व करेंगे 3/R100. देन 1 को मूव करेंगे यहाँ पे तो ये -1 हो जाएगा. 2 1s देन 1/2 ये कैंसिल. देन R इज इक्वल टू क्या होगा 50. Here's the answer. Now move to fourth question. What is the fourth question? The area of rectangular field is 150 square meter. Okay. Area of a rectangular, that is a rectangular है, field is 1 L into V. Area of rectangle क्या होता है? L into B is equal to 150. Okay. And its perimeter क्या होता है? 2L plus B is equal to 50. Then L plus B is equal to 25. ये कैंसिल हो गया 25 टाइम्स में. ओके. नाउ हम डिवाइड कर देंगे तो भी निकल जाता है. L into B, sorry, L plus B is equal to 25 upon 150. हाँ, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं. L 1 upon L plus 1 upon B. अगर आपको एलसीएम निकालने आता होगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, B का यहाँ मल्टीप्लाई हो गया देन L का देन कंप्लीट एल बी, ये फॉर्म आ जाएगा डायरेक्ट. और ये इसे हम लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/10. 10 का यहाँ मल्टीप्लाई 15 का यहाँ मल्टीप्लाई देन 25 आ जाएगा. 15 इंटू 10 150 आ जाएगा. इसको कंपेरिजन करोगे तो क्या मिलेगा हमें? L इज इक्वल टू 50 एंड 10 इज इक्वल टू 10. हमें यहाँ पे देखो डी ऑप्शन मिल रहा है. Now move to, that's the right answer. Now move to fifth question. क्या है fifth question? If the price of commodity is increased 50%, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption? Okay. 50% इंक्रीज कर देता है. फॉर एग्जाम्पल P1 ये है, P2 ये है. पहले 100 था, देन क्या हो गया 150 हो गया. 0 0 कैंसिल, 5 2 एंड 5 3, 2:3. Okay. If the price of the commodity is increased by 50%, what fraction must be consumption to reduce of expenditure? ये कंजप्शन है, एक्सपेंडिचर जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा. 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे. नाउ मूव टू, और 3 में 2 माइनस करेंगे देन 1 में अपॉन 3 ऑन द सेम कंजप्शन. परसेंटेज के लिए ये करेंगे देन आएगा हमें क्या 33/13 या फिर 1/3. ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. अगर परसेंटेज चाहिए तो 33/13%. नाउ टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6th. The HCF and LCF of two हैं. ओके, हमें पता है HCF इंटू LCM का रिलेशन होता है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर.
हमें एचसीएफ 24 given है, okay, LCM 168 given है, okay, and the numbers are okay 1x into 7x, that is ये नंबर है, कुछ कट रहा है क्या, देखो कैसे, 7 1 7 7 2 and 2 is 7 for 24, then x square is equal to x is equal to 24. Find the greater values. Greater value 7x, 7 में 24 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 into 4 8, okay, then 2 carry over, 7 into 2 14, 14 and 168, that's the answer. Now move to next question. Now move to next question. Yeah, on what principle? On what principle the simple interest at the rate of 6, okay, rate हमारे पास क्या है, 6 into 4 24, 6 1/4 परसेंटेज, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 6 into 4 24 है, 25/4 into 100, 25 into 4 मतलब 1/16 है रेट, ओके. Per annum will 1 rupees per day if the year is not in leap years. अच्छा लीप ईयर नहीं है तो 1 ईयर में कितने डेज होंगे, 365 डेज, ओके. सिंपल से लगा लेते हैं हम लोग, ऐसा ही इसे करके क्या होता है, PRT/100, ओके, यहाँ तक क्लियर है. और ऐसा ही क्या होगा, on what principle the simple interest at the rate of per annum for 1 rupees per day, ओके, सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, हमें निकालना है रेट, रेट है हमारा 1/16, टाइम है r/100 हमने यहाँ पे निकाला, रेट 1/16 हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था, टाइम टाइम है 1/365, now calculate p is equal to 16 into 365, if you multiply then you get 5840, that's the answer. Now move to next question, 8th. 5 years ago, the average age of A, B, C and D was 45 years. Okay. Let us in A के 5 साल पहले, then B के 5 years पहले, before, ago, then C plus then D minus 5 is equal to कितना है, 45. How many members are A, B, C, D? 4 members are there. So we can note down like that A. Now we simply note down A plus B plus C plus B. Now if you multiply 45 into 4, you get 180. Now 5, 5, 10, 5, 15, 15 plus 5, 20. 20 जब लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में की जाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 200, ओके, 200. ना अब क्या बोल रहे हैं, with E joining them now the average age of all the 5 is 14 years. अब जैसे ही A plus B plus C plus D plus E इसमें 5 मेंबर ऐड जाते तो एवरेज कितना था, 49. हमें A plus B plus C plus D इसकी टोटल वैल्यू 200 है, ये लिख लेते हैं. देन E इज इक्वल टू 49 इंटू 5 कितना होगा, 5 9 5 45 520 कितना होगा, 2 4 5. नाउ E में 200 माइनस करेंगे देन 45, ए की हमारी एज कितनी निकली है, 45 ईयर्स. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is ninth question? Okay, that's the ninth question. A square is drawn on each side
ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा ठीक है, बना लेते इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट अज्यूम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और स्क्वायर इज ड्रॉन ऑन ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल। अच्छा जी, यहाँ पे एक स्क्वायर, ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, अज्यूम कर लेना है परफेक्ट। यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करना है लाइक दैट। अच्छा, ये रेक्टेंगल टाइप पे दिख रहा है, थोड़ा सा साइज को कर लेना। ओके, इफ each side of the triangle is 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर? ये 64 है, ये 64 होगा, ये 64 होगा। ओके, इफ each side of the triangle is 8 सेंटीमीटर then find the area of the whole figure। पहले तो हम ये स्क्वायर का निकाल लेते हैं, ये स्क्वायर फर्स्ट के लिए, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर, टोटल कितने होंगे ये होंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एरिया ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे रख देते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी थी? 64। 4 1 से 4, 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 16। ना हमें मिल गया 16 प्लस अंडर रूट 3, इसमें क्या आएगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। टोटल एड ऑन करेंगे तो आएगा 192 प्लस 16 अंडर रूट 3। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है? ये रहा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, एवरीवन नो अबाउट दैट। कितना होता है? 2 पाई आर। 2 into pi is equal to 22/7 and r, what's the value of r? 5 centimeter. Now calculate। कुछ ये तो डेसिमल में लग रहा है। लेट्स सी, 5 into 10, या फिर हम डायरेक्टली ये भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें पाई का वैल्यू हमें पता है 3.14 होता है, या फिर हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए 22/7 लिखते हैं। हम इसके जगह पे 0.4 लिख देते हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई दैट, 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये होगा, and we have easily get the answer। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ रिप्लाई। आगे और भी आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।